ہمیں ان زمانوں اور ان واقعات سے آگاہی اس لیے دے رہا ہے، پہچان اس لیے کرا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے پاس درست طریقے کی جو آگاہی ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں انسانوں کا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، معلومات بہت زیادہ ہیں۔ پرانے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے کہا کہ معلومات کا زیادہ ہو جانا بھی انسان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ انسان ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتا نا، ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کا ارتکاب بھی کم رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو بطور انسان جو سوال و جواب ہونے والے ہیں وہ بھی آسان رہے اور کم رہے۔ لیکن جب آگاہی بڑھ گئی ہے، معلومات بڑھ گئی ہے، انفارمیشن زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر اس دور میں رہنے والا انسان وہ زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس کے پاس معلومات موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے آذان نہیں سنی۔ سابقہ امتوں کو بتایا گیا کہ قیامت حشر کے میدان میں کچھ لوگ آ کر کہیں گے، بتایا جائے گا یہ تمہاری طرف نبی تھا، وہ کہیں گے بارے الہ ہمیں تو آواز ہی نہیں پہنچی، ہمارے تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اگرچہ پیغام پہنچ گیا تھا لیکن اعتراض کرنے کی ان کے پاس گنجائش تھی، اور امت مسلمہ کے قیامت تک رہنے کا اور نبی خاتم النبیین کی ختم نبوت کا ایک اور سبب یہ ہے کہ اس کائنات ارضی پر رہنے والا آج کا کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں پہنچی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ انکار اس نے کیا ہے تو اس نے سن کر کیا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آواز نہیں پہنچی، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائے اور مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ یہ معلومات پہنچ چکی ہیں، لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا ہے، اس کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ شروع ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے کہ جب انسان کے پاس معلومات پہنچ جاتی ہے نا، جیسے نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت کا علم ہو جائے، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، بندہ زندہ ہے، بندہ ہوش و حواس میں ہے، بندہ بیمار بھی نہیں ہے، اور بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں مثال کے طور پہ انسان چلا گیا، اس کی وہ نماز کی رخصت ہے کہ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ جیسے کوئی بندہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، اب وہ کیونکہ ذہنی طور پہ سلامت نہیں ہے لہذا اس کی نماز کی رخصت موجود ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس معلومات نہیں پہنچی۔ پھر اسی طرح انسان کسی ایسے خطے میں ہے کہ جہاں اس کے پاس وقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا کے کسی کونے میں ہوں اور مجھے وقت کا نہ پتہ چلے۔ بہرحال یہ شریعت نے یہ بتایا کہ کہیں کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ ہاں، جب اسے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، وہ ہوش و حواس میں ہے، تندرست سلامت ہے، زندہ ہے، تو اس پر نماز فرض ہو گئی، یعنی معلومات نے آپ کو پابند کیا۔ ہم سمجھتے ہیں نا معلومات بڑی اچھی چیز ہے، معلومات اچھی ہیں، لیکن ان معلومات کے ساتھ پابندیاں بھی ہیں، ان انفارمیشن کے ساتھ آپ پر حدود بھی جاری ہو جاتی ہیں۔ جیسے گورنمنٹ کوئی قانون پاس کرتی ہے نا کسی بھی ملک کا، تو اس کو پہلے پبلک کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے اشتہارات کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے، یہ قانون ہے۔ اب قانون پتہ چل گیا، اب پابندی ضروری ہو گئی۔
जब तक उसको ऐलान नहीं किया तो पता नहीं चला था। यानी मालूमात ने आपको पाबंद किया। इंसान आज ये समझ रहा है मैंने इंफॉर्मेशन ले ली है, मैंने मालूमात ले ली है। ओ भाई, मालूमात तो तुम्हें मिल गई हैं, लेकिन इन मालूमात के साथ तुम पर जो पाबंदियां शुरू हुई हैं उनका तुम्हें पता ही नहीं है। जहालत भी कभी कभी इंसान को फायदे में रह जाती है। फायदे में कैसे रह जाती है भाई? एक कमी होगी भाई, पता ही कोई नहीं था। आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, मुझे पाकीज़गी का नहीं पता था, मुझे तारत का नहीं पता था। अच्छा, जो आज के दौर में ये कहता है ना, बुनियादी तौर पे आज जो बंदा ये कहे मुझे वुजू का नहीं पता, मैं कहता हूँ भाई उसने सीखा ही नहीं। मुसलमानों के घर में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पे पैदा होने वाले बच्चे के कान में अजान देने के बाद कोई कैसा ही घर है, बहरहाल उसके होश संभालने पर वालिदैन उसको कलमा सिखाते हैं, उसको कहीं पढ़ने भेजते हैं, उसे पाकीज़गी का बताते हैं, नापाकी का बताते हैं, वुजू का बताते हैं। लेकिन फिर भी जो 60 साल की उम्र में कहे हमें वुजू का नहीं पता, इसका मतलब है भाई उन्होंने जानबूझकर इससे आगे चलना ही नहीं है। वरना हर आज के दौर का इंसान जो है ना, उसे पाकीज़गी का पता है, उसे तारत का पता है, उसे वुजू का पता है, और अगर नहीं पता तो उसकी अपनी कोताही और कमजोरी है। हाज़रीन मुकर्रम, बात ये हो रही थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अहवाल बार बार सुनाया जा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब कौम से मुकाबला फिरौन ने कराया ना जादूगरों से, वकाल अल मलाउ मिन कौम फिरऔन अतज़रु मूसा, अब उसने क्या किया कि उन जादूगरों को सजा दे दी, जादूगरों के हाथ पांव काट कर सूली पर लटका दिया। जैसे जुमातुल मुबारक गुज़श्ता पर मैंने अर्ज किया कि ये इस्तिकामत ईमान की एक अहम पहचान है। जो कलमा पढ़ेगा, जो रब वाहिद पर ईमान लाएगा, जो रसूल की फरमाबरदारी करेगा, वो आजमाइश के लिए तैयार रहे, वो इम्तिहान के लिए, इब्तला के लिए, मुसीबत के लिए तैयार रहे। अब इसके बाद भी वकाल अल मलाउ मिन कौम फिरऔन अतज़रु मूसा, उसके कौम के वो जो उसके हवारी थे ना, हमेशा इंसान को ना कुरान मजीद की इस आयत मुबारका पर मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि एक ये भी है कि ये हम नवा ही होते हैं जो इंसान को किसी बड़े जुर्म में ले जाते हैं। और इससे ये भी बार बार पता चला कुरान मजीद के इन अल्फाज से कि कुरान मजीद ने बार बार ये कई मकामात पर ये दोहराया, वकाल अल मलाउ मिन कौम फिरऔन, ये लफ्ज कई मरतबा दोहराया गया। इसका मकसद ये है कि हमेशा आपने अपने में से, माशरे में से, माहौल में से, बरादरी में से किस बंदे को आपने मशवरा देने वाला बनाना है, ये बड़ा आम है। हम ये देखते ही नहीं है कि मशवरा कौन दे रहा है, ये भी बड़ा आम है। फिरौन को उसके जो हमनवा थे ना, उनके मशवरे भी बड़े उसे बनाने वाले थे। और कुरान मजीद ने वो बार बार दोहराया, इसलिए दोहराया कि ये भी देखना है कि मशवरा देने वाला कौन है। वकाल अल मलाउ मिन कौम फिरऔन, और कुरान ने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, सरदार थे, उसके जो कौम के सरदार थे ना, ये कई मकामात पर दोहराया गया कि उनकी सरदारी भी बनी हुई थी, इसकी माज़अल्लाह खुदाई बनी हुई थी। अब वो आपस का एक चक्कर है बना हुआ, एक खुदा बना हुआ है और उसने वो चंद सरदार बनाए हुए हैं। उन्हें ये लगा कि ये जो इसने सजा दे दी है ना, लोग तो मौत के लिए तैयार हो गए हैं, और दुनिया में सबसे बड़ी बहादुरी यही है। इसीलिए हजरत मौला अली ने फरमाया था कि मौत से जो हम किनार होने के लिए तैयार है, उससे तुम बड़ा बहादुर नहीं ला सकते हो। जो जान देने के लिए तैयार है और जान लेने के लिए तैयार है। अब जब उन्होंने देखा कि ये जो लोग ईमान लाए हजरत मूसा पर, ये तो इतने डट गए हैं, इतने पुख्ता हो गए हैं
बाजू काट दिए गए हैं, पांव काट दिए गए हैं, गर्दनें उड़ा दी गई हैं, और वो अपने ईमान पर पुख्ता हो गए हैं। ये सामने पड़ा हुआ सोना चांदी, ये इन्हें बड़ी सारी आफर, ये बादशाहत का लालच, कोई चीज उन्हें हटा नहीं सकी है। उन्हें खतरा पड़ गया कि ये जो लोग हमने बेवकूफ बना रखे हैं, ये तो हमारे से दूर हो जाएंगे, लोगों में मकबूलियत हो जाएगी, लोग इनकी बहादुरी को जो है वो कबूल कर लेंगे। अब वो कहने लगे अतज़रु मूसा व कौमहू लियुफ्सिदू फिल अर्द, कहने लगे तूने उनको तो कत्ल कर दिया है, मूसा को छोड़ दिया है और मूसा के घर वालों को छोड़ दिया है। लियुफ्सिदू फिल अर्दी व यज़रका व आलिहतक, अब देखिए इंसान को अपने हम नवा कैसे बनाने चाहिए। बुजुर्गान दीन ने इसीलिए जिंदगियां सर्फ की हैं कि जो इंसान की सोहबत है, जो संगत है, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। कुरान मजीद ने इसीलिए कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की दोस्ती इख्तियार करो। कौन से? जो ईमानदार हैं, जो तकवा वाले हैं, जो बुजुर्गी वाले हैं, जो सच्चे हैं, उनकी दोस्ती इख्तियार करो। फिरौन ने एक जुर्म किया ना कि उसने पहले जादूगर बुलाए, अब जब वो ईमान ले आए उन्हें कत्ल करा दिया। अब जो हम नवा है ना, वो जो संगत वाले हैं, जो दोस्ती वाले हैं, पता चला कि इंसान की दोस्ती भी उसकी जिंदगी को बनाती और संवारती है। ये जो हम बड़े बड़े नाम पढ़ते हैं ना, हजरत दाता अली हजवेरी, हजरत फरीद गंज शकर, असल में ये दोस्ती है जिसने ये शख्सियात बनाई है। इंसान हमेशा अपनी संगत से पहचाना जाता है। जो सच्चों के साथ रहता है वो सच्चा हो जाता है। जो बुरों, आज हम क्या कहते हैं, वो सारों के साथ मिलना चाहिए। ये जो सारों के साथ मिलना है ना, यही इंसान की शख्सियत को डैमेज करता है, इंसान की शख्सियत को कमजोर करता है, इंसान की शख्सियत में जवाल लाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि सच क्या है, झूठ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, खैर क्या है, शर क्या है। हमेशा खैर वाली दोस्ती, सच्चों की मईयत, अल्लाह वालों की दोस्ती, और खबरदार ये दूसरों के साथ मिलना मिलाना कि जी हम सारों को साथ लेकर चलते हैं। ये सारों को साथ लेकर चलने में एक इंसान अपना नुकसान करता है कि उसकी अपनी शख्सियत की कोई पहचान नहीं बनती। बुजुर्गान दीन ने क्या कहा कि इंसानों से आपने ये नहीं करना कि आपने एक बड़ा इकट्ठ कर लेना है। अब हमारे यहाँ पैमाना क्या बन गया है, हम कहते हैं हम बहुत सारे हमें जानते हैं, हमारी बड़ी संगत है, हमारी बड़ी वसी दोस्ती है, और उस वसी दोस्ती में पता ही कोई नहीं चलता खैर वाला कौन सा है, शर वाला कौन सा है, सच्चा कौन सा है, झूठा कौन सा है। और इंसान गैर महसूस अंदाज से, तालीम के माहिर कहते हैं कि एक उस्ताद का लेक्चर जो है ना, वो इंसान पर बहुत देर से असर करता है, और उसके दोस्तों की जो कंपनी है, उसकी जो सोसाइटी है, उसकी जो संगत है, वो उस इंसान के किरदार पर, उसकी शख्सियत पर, उसके गुफ्तार पर वो बहुत जल्दी असर अंदाज हो जाती है। कुरान मजीद ने देखिए कि वो जो फिरौन के हमनवा हैं, उसके जो संगी हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनकी आवाज को भी अपनी आयात में महफूज किया कि पता चले कि फिरौन तन्हा नहीं बना, अकेला ही नहीं बन गया कि पैदा हुआ तो ऐसे ही बन गया, बल्कि वो एक पूरी सोसाइटी है, वो एक पूरा कॉम्बिनेशन है, वो एक पूरा गिरोह है जो माशरे में मौजूद है। अब उन्होंने दरमियान में से एक सिंबल बना दिया ना, एक फिरौन नजर आ रहा है। अब उसके जो हम नवा है, कुरान कहते हैं वक़ालल मलाउ मिन कौम फिरऔन, उसकी कौम के सरदार है माज़अल्लाह जो उसको खुदा बना रहे हैं, जो उसको खुदाई का दावा करा रहे हैं, तू बहुत बड़ा हो गए, तू बड़ा ताकतवर हो गए, तू बड़ा शहनशाह बन गया। यानी चंद ऐसे मौजूद हैं जो उसे ये सलाह दे रहे हैं, उसे ये मशवरा दे रहे हैं।
अब देखिए ये मशवरा क्या है, जब वो उन अहले ईमान को कत्ल कर चुका ना, इतना बड़ा जुल्म कर चुका, उसके बावजूद भी नहीं रुके। और ऐसे जो संगी है ना, ऐसी जो दोस्ती है, यही इंसान को जवाल का शिकार करती। आज के माशरे में भी हम देख सकते हैं, जुर्म करने वाला एक तनहा नहीं होता, उसके हमनवा होते हैं, उसके सहूलतकार होते हैं, उसको फैसिलिटेट करने वाले होते हैं, उसको बनाने संवारने वाले होते हैं, उसकी ज़हन साजी करने वाले होते हैं। कुरान कहते हैं ये उसकी ज़हन साजी करने वाले हैं। वक़ाल अल मलउ मिन कौम फिरऔन, फिरऔन की भी ज़हन साजी करने वाले हैं। वो उसे कहते हैं ये कम है, ये तो अभी कुछ नहीं किया है, तूने इनको कत्ल किया है। अतज़रु मूसा, तूने मूसा को छोड़ दिया है, जिस पर ये ईमान लाए हैं, जिसकी वजह से ये मोमिन बने हैं, जिसकी वजह से ये तेरा इनकार करने वाले बने हैं। लियुफ्सिदू फिल अर्द। अब अगली बात देखिए, कुरान कहता है वो फिरौन को मशवरा दे रहे हैं कि मूसा को छोड़ दिया है, ये जमीन में फसाद फैलाएगा। वयज़रा का वआलिहतक, ये तेरी हलाकत का बायस बनेगा। अल्लाह अकबर। देखिए कुरान ये उनके मशवरे को इसलिए सुना रहा है, रब का कलाम हमें ये इसलिए बता रहा है, उसने जो किया, उन्होंने जो बुराई फैलाई, उसने अपना अंजाम पा लिया। अब रब का कलाम ये कयामत तक हमें पैगाम देता रहेगा। ये संगत है, ये मईयत है, ये दोस्ती है, जो इंसान को संवारती भी है, बिगाड़ती भी है। कुरान ने इसीलिए दूसरे मकाम में बताया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों की दोस्ती इख्तियार करो। और कुरान ने ही हमें दूसरे मकाम पर बताया कि ये दोस्ती कितनी अहम होती है, ये संगत, ये मईयत कितनी अहम होती है। कुरान ने कहा सालियतनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो दो गार में थे और उनका दूसरा जो उनका साहिब था, जो मईयत वाला था, जो दोस्त था, उस पर जब खौफ तारी हुआ तो उन्होंने कहा ला तहज़न। पता है ये बात किसकी हो रही है? ये उस सिद्दीक की बात हो रही है जो इस कायनाते अर्जी पर अनमोल दोस्त है, जिस जैसी मईयत किसी की नहीं, जो गार में भी साथ था, मिज़ार में भी साथ है। एक वो मईयत है, एक वो दोस्ती है, और एक ये मईयत और एक ये दोस्ती है, जिसके लिए कुरान भी गवाह बनता है कि सालियतनैनी इज़ हुमा फिल गार, कि वो दोनों, हालांकि अल्लाह के नबी के लिए कलाम आता ना, लेकिन कुर्बान जाइए इस दोस्ती की बदौलत मिलता क्या है। इधर फिरौन बनता है ऐसी मईयत से, और उधर ऐसी दोस्ती से सिद्दीक अकबर बनता है। ये फर्क है। हम समझते हैं कोई नहीं जी, हम अपनी बात पे पक्के हैं, हम जहां बैठेंगे हमें कोई परवाह नहीं। ये जो इंसान की दोस्ती और संगत है ना, ये इंसान की पहचान बन जाती है, ये शख्सियत बना देती है, ये किरदार बना देती है, ये किरदार संवार भी देती है, बिगाड़ भी देती है। हम जो बोलते हैं, हमारी जो गुफ्तार है, वो कहां से बनती है? हम जो कुछ सुनते हैं वो बोलते हैं। और इंसान सुनता किससे है? जिसके साथ इंसान मिलता है, जिसके साथ बैठता है। अब जाहिर है सैयदना सिद्दीक अकबर की मईयत आकाए करीम इमामुल अंबिया के साथ, जाहिर है उनका बोलना वही तो वो सुनते हैं, इसीलिए वो अतीक भी है, वो सिद्दीक भी है। और कुरान ने उनके लिए जानते हैं एक और क्या सनद दी, वसयुजन्नबुहल अत्का, कि जब सिद्दीक अकबर अपने घर का सारा माल लाए ना, कि जब हजरत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं तो आज इसमें था कि आज तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन कमाल की ये मईयत है, ये कमाल की दोस्ती है कि आज घर में एक कपड़ा भी नहीं छोड़ा, अपने तन वाले भी उतार कर बोरी पहन कर आ गए। कुरान ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का, इससे बड़ा मुत्तकी हो ही नहीं सकता। सुपरलेटिव डिग्री दी,
वजह क्या है? मैयत ऐसी है, दोस्ती ऐसी है, संगत ऐसी है। कुरान ने इसलिए एक तरफ उनकी मिसाल दी और इधर ये बताया कि ये जो तुम दुनिया का जालिम तरीन मानते हो ना, तुम दुनिया का सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ मानते हो, फिरौन जिसे कहते हो, वो भी ऐसे नहीं बना। उसके गिर्द भी एक दोस्ती है, उसके गिर्द भी एक सोसाइटी है जो उसे बना रही है, जो उसे संवार रही है, उसके राह पर और आगे बढ़ा रही है उसे, और वो उसके एक एक जुर्म के बाद उसे कहते हैं ये कम है, जरा और आगे बढ़। उसे कहते हैं आतज़रु मूसा, तूने इनको कत्ल किया है, मूसा को छोड़ दिया है, लियुफ्सिदू फिल अर्दि वयज़रका वआलिहतक, ये तो तेरी हलाकत का बायस बनेगा। अब तू ऐसे कर, हजरत मूसा को, उनके घर वालों को कत्ल कर। हाज़िन मुकर्रम, जो उसने किया उसने पा लिया अपना अंजाम। रब का कलाम हमें ये क्यों सुना रहा है, क्यों बता रहा है? सबक हमारे लिए ये है कि इंसान का किरदार, इंसान की शख्सियत, वो उसकी दोस्ती से बनने वाली है, उसकी मैयत से बनने वाली है। वो बैठता कहाँ है, वो मिलता किनसे है, बात किससे करता है, और यही उसका किरदार बनने वाला है, यही उसका गुफ्तार बनने वाला है।